आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऑन स्लीप, जो कि बहुत लोग ही इसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक प्रियंका, हम इससे स्टार्ट करते हैं, पहले वाले लास्ट वाले एपिसोड का रिकैप करते हैं, राइट? सो Absolutely. राइट Hi सो everyone. राइट so let people join in also. You can start commenting, liking this video, and do post your questions also. So Priyanka, we Yes, will start with the please. recap. जो हमारा Yes, sure. लास्ट वीक का टॉपिक था on mental health. So what are some of the tools to help ourselves dealing with mental health or depression? So in short, what are the top things to do? So yes, because you asked a very interesting way to do, right? Right. And the key to mental health, key to the tools which will help in mental health depression is to be. So it's not to do, it is to be. Like we discussed, spending time in nature, listening to oneself in silence. Now, that is something that will give you all the answers because all the answers are already within us. So, we have to get out of this mindset of to do. Like, I need 5 things to do. That Right. is not the route to coming out of depression, coming out of mental health issues. To be and to just listen, to relax. Right. That is the way to be. And that is the tool number one and the most important one, which is just to be in nature and listen to oneself in silence. Correct. So next question ये आता है that sometimes हमें पता ही नहीं चलता कि हम mental health के मतलब we are suffering from mental health issues. So what is the sign that I am in an optimal state? So these are like, it's very simple. So these are the two things, and you just have to judge whether you have these in you or you do not have it. One is curiosity. Are you curious about all the new things? It could be about anything. It could be about technology, it could be about AI, it could be about fashion, it could be about anything. But do you have curiosity in life? That is point number one. And the second is creativity. Do you have creativity? You just want to do something, create something for the sake of creation. And there is no goal that you have in that creativity. So, curiosity and creativity, these are the two signs that you are living in a very optimal state of mind. Okay. And just last question, why there is a need to cooperate over competition? Because that's the DNA of our body. Like if we see our brain is one organ where a lot of data is getting stored, the people who are storing that data are the bacteria, the protozoa, the fungi, and the viruses. So, do you think you are separate from them? Given they are the ones, they are the fingers which are typing in that keyboard for the computer called your brain. The whole body, the function of the body is to cooperate with each other. Only then the body can exist in a state that it wants to exist. We cannot have a reductionist attitude that, okay, this is heart, this is brain, because heart does not exist for itself. Heart exists so that it can pump blood into your brain, into your liver, into your legs, into your arms. So the each cell in your body exists for the purpose of helping other cells. So cooperation is in our DNA. And if we go away from our DNA, that is the state in which disease starts happening. Correct. So let's just jump into the topic, which is sleep. So before we dive into the Sorry, topic, I think there is a signal issue. can you hear me? Yes, Guys, yes, I can. if you can hear us, please do comment yes in comment section. If you have any issue with the audio or video with for both Priyanka and me, Yes, please let us know. yeah, do let us know. Right. So before we dive into the topic, so what is your experience with this sleep patterns, and generally what have you seen with people? Sure. And before coming on that, I will ask you one simple question in return to this question, and that is, I, how many days can you live without water? Uh, Maybe a not day, maybe 2 days, at Yeah, maybe, best 3 days. right. I think 2 days would be difficult.
We can Yeah, live without food for a long time, but not without water. correct. So food we can live without, like, there are people who live without food for, like, a week, or sometimes even more than a week, under guidance, of Yes. course. And then, like, if I ask you, we all keep talking about movement, exercise, sunlight. How many days can you live without it? You can live What's without exercise for a long time, right? right? Now, how many how many days can you live without sleep? I think what I have heard is that there is no record for this, because nobody has ever attempted, even in Guinness Book of World Record, because after 3-4 days थोड़ा साइकोटिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, पागल होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट आई थिंक 7 days 3-4 का रिकॉर्ड है. तो ज़्यादा साइकोटिक हो जाता है. Like, हाँ. even after one night of missed sleep, your brain is functioning at a very, very suboptimal study. So suboptimal level. Like, in fact, like, मैं एक स्टडी से go through कर रही थी. I don't know whether how true that is, but उसमें कुछ ऐसा था कि you miss one day of sleep, one night of sleep, and your brain ages by 2 years. 2 years. मतलब क्या सुडोकू खेल के ब्रेन की हेल्प कर रहे हो, क्या ब्रेन गेम्स खेल रहे हो. एक नाइट ऑफ स्लीप कैन डू सो मच हार्म दैट इट्स नॉट इवन कंपेरेबल. सो लाइक इट्स, यहाँ पर व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस इज, इधर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है. ये एक हेल्थ प्रूफ चीज है कि स्लीप इज द बेडरॉक ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ. योर स्लीप इज अपसेट, एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस. सो मतलब इधर you do not mess with this one important pillar in your health journey, in your life journey, because this is so fundamental and it must be very important. If you see, खाली हम नहीं सोते, सारे एनिमल्स सोते हैं. It is something which is hardwired into our evolution. एंड स्लीप का बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी एपिटाइट से, हमारे हॉर्मोन्स से, हमारी मेंटल हेल्थ से, हमारी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ से, हमारी परफॉर्मेंस इन जिम से, हमारा इम्यून सिस्टम से, एंजाइटी लेवल से. सो इट इज सो फंडामेंटल टू प्रिटी हमेशा यू आर सर्चिंग फॉर some complicated solution. Simple चीज नहीं. I have PCOD. I really want a very specific solution, specific diet plan for my PCOD, जिसमें भी उनका कुछ एक अलग nuance होगा, तो वो वाले nuance के लिए चाहिए. But what people don't understand is sometimes the solution to our problems could be extremely simple. सोना टाइम पे शुरू कर दो, 8 घंटे की नींद ले लो, a lot of the things will improve, because it works with a lot of the systems in the body, and you do not know, मतलब it has direct correlation with your sex hormones. PCOD में क्या खराब होता है आपके, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन. So it has got complete correlation with that. So that is how important sleep is. And what we have seen is, sometimes when people are looking for solutions for their problems, you just set the sleep right. 1 घंटा बढ़ाओ and things starts improving. सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, लोग ना बिलीव नहीं करते ये हो सकता, ये प्रॉब्लम आती है. सो मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि people want some complex thing, but what we have to understand is कि जब हमारी ये बॉडी एवोल्यूशनरी बनी है, खाली हमारी नहीं बनी है, इतने सारे एनिमल्स की बॉडी बनी है, they do not live a very complex life. अगर हमारे जिंदा रहने के लिए हमें इतने रिसर्च पढ़ने पड़ते, इतने पॉडकास्ट सुनने पड़ते, इतने सप्लीमेंट्स खाने पड़ते, that is not a good job done by nature, right? Then our species would have survived for that long. So the thing is कि यही मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है, once people start believing कि हाँ simple solutions can work, उनकी हेल्थ सिचुएशन में मैजिक वे में अपीयर चेंज होता है, भले ही वो हार्मोनल हेल्थ इश्यूज हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, डायबिटीज हो, वेट लॉस इश्यूज हो. And we will discuss in this podcast about what is the physiology of how does it help with weight loss. Right. And even for this healing and sleep cycle, we have our detailed video on channel UAP Official, which explains कि body और mind कैसे काम करते हैं and sleep कैसे pattern affect करता है, and भर मुहूर्त में उठने का क्या इफेक्ट होता है, आपको कैसे आप लाइट के साथ खाने का शेड्यूल चलता है. तो you can go and check out that link also. We will put that in description. So
जब आप कह रहे हैं कि पीपल डोंट एग्री क्योंकि लोग मानते ही नहीं है कि ये इनको इफेक्ट करता है, तो थ्रो अस विद सम स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स अबाउट हाउ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स आर एंड हाउ दे इम्पैक्ट आवर हेल्थ. Correct. So, see, some of the things like, like I'd like to mention is in this, the kind of society that we are living in today. Now, there is a lot of focus on consumption and production. कि अगर आप कुछ या तो कंज्यूम कर रहे हो या आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तब तो आप काम कर रहे हो. लेकिन अगर आप बैठ के सो रहे हो, so this is like, people don't like take a very high view of that. Like even in, जैसे investment banking jobs होती हैं, like, people do night outs all the time. It is easily compromised. People don't realize how important sleep is to productivity. Now, I'll give you a fact that 20 minutes of nap in the afternoon has a direct correlation with your productivity. Your productivity goes up by 30% just by taking this 20-minute nap. Now, इसमें एक कैवियाट है कि उस 20 मिनट की नैप को 40 मिनट मत कर देना, क्योंकि फिर वो स्लीप साइकिल में चले जाते हैं और फिर आपको वो फिर सो व्हेन यू गेट अप फ्रॉम अ 45 मिनट नैप, यू विल गेट अप वेरी थोड़ा सैड होके आप उठोगे, थोड़ा ग्रम्पी भी होगे, एंड देन दैट विल हैव अ डाउनवर्ड इफेक्ट. So you need very short 20-minute nap, power nap, and that has been linked to increased productivity. And that's why, big offices like Google and all, they do have a sleep nap, and this is perfectly allowed, right? So यही होना चाहिए corporates के अंदर, because it's not like कि अगर आप सो रहे हैं तो कुछ लॉस कर रहे हैं. अगर आप 20 मिनट सो रहे हैं, मतलब हाँ, 2-2 घंटे सो रहे हैं तो डेफिनेटली लॉस है, बट अगर आप 20 मिनट सो रहे हैं, so you might be one helping your own, feel good factor. So the employees will not just feel good, they will also be more productive. So this is something which is, all corporates should be looking after. So this is one thing. And what happens is when we get this, अगर आप ये पावर नैप नहीं लेते तो होता क्या है कि हम लोग कॉफी में जाते हैं, नहीं तो चाय पीते हैं. दीज आर द कॉमन वेज इन विच हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, राइट? तो अब उसमें क्या होता है, जब कॉफी की वर्किंग होती है, वो कैसे होती है? यू आर नॉट क्रिएटिंग एनर्जी, यू आर बोरोइंग द एनर्जी फ्रॉम द फ्यूचर. एंड हेंस व्हाट हैपेंस इट, कॉफी के बाद एक क्रैश आता है, फिर थोड़ी देर बाद एक और कॉफी चाहिए, या सिगरेट के साथ, सो टू से, या इवन चाय के साथ. सो ये जो मेथड्स हैं आपकी एनर्जी जनरेट करने के, दे आर very inferior method, because you're not really generating energy, you're just borrowing it out of the future. borrow किया तो भाई फ्यूचर भी आ जाएगा, कोई मरने थोड़ा ना वाले हो, फ्यूचर तो आएगा. फिर वो क्रैश जब आता है, दैट इज वांट अ स्मोक, और यू वांट अ, एक कुछ चाय, चॉकलेट, कुछ तो मतलब आपको चिप्स खाने हैं, मतलब बिकॉज जब एनर्जी लो जाती है, बॉडी को ये सिग्नल मिलता है मुझे कुछ चाहिए. अब इतना तो कॉन्शियसनेस जैसे होता है ना कि क्या चाहिए, या तो हम पकड़ पाए कि ये क्यों हुआ. नॉर्मली क्या होता है, आप इतना बिजी होते हो अपनी लाइफ में, आप बोलोगे कुछ चाहिए, मतलब चिप्स का पैकेट चाहिए, नहीं तो स्मोक चाहिए. So that is the thing कि how important and what a free method it is. मतलब sleep is the most underutilized drug, performance enhancing drug in sports, in offices, in life in general. So this is a drug जिस एक्चुअली किसी भी ड्रग का इतना इफेक्ट नहीं है जितना स्लीप, सिंपल स्लीप का है. कोई यकीन करे तब ना, ये प्रॉब्लम है. अभी आप देखते हो कि जैसे हम लोग कोई भी दिक्कत होती है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट जो जैसे डॉक्टर्स की जो पढ़ाई है उसमें डिजीज के ऊपर बहुत फोकस है. स्लीप एज अ चैप्टर, खाली 1 घंटे का चैप्टर, इतनी बड़ी स्टडी. एंड इनफैक्ट स्लीप के ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च तो अभी लेटेस्ट में हो रही है. सो ये मतलब फ्री का मेथड है, अवेलेबल है, एवरीबडी कैन यूटिलाइज इट, वी कैन सी इट इन नेचर, सारे जानवर यही करते हैं. हम लोग अपनी स्लीप को हिला के, मतलब दिस इज लाइक द बेस्ट सप्लीमेंट यू कैन गेट, free supplement, performance enhancing, which will help you in your sports, in your office, in your life, in your relationships, everywhere. And guys, if you want to use 15-minute break, we have a meditation session every day at 1:45.
तो आप वहाँ अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से ब्रेक ले सकते हैं। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट जो मेडिटेशन सेशन है। अगर मैं पूछना चाहूँ कि पावर नैप लेते कैसे हैं, व्हाट एग्जैक्ट मतलब एक सही तरीका क्या है पावर नैप का? मुझे तो लगता है कि मैं अगर सोऊंगा तो शायद सोता ही रह जाऊंगा, तो कैसे करें See, इसको? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। और जो मैं सोऊंगा और सोता रह जाऊंगा, इट मीन्स माई बॉडी इज रनिंग अ स्लीप डेफिसिट। सी हमें क्या लगता है, सपोज करो मैंने मंडे टू फ्राइडे मुझे ऑफिस जाना है, राइट? मैं 6 घंटे सोती हूँ मंडे टू फ्राइडे, ठीक? मे बी मेरी बॉडी को जरूरत है 8 घंटे। आई थिंक आपकी वीडियो से थोड़ा सा फ्राइडे में मेरा आई थिंक वीडियो आपकी थोड़ी सी, हाँ राइट, हाँ, नहीं इट्स फाइन। सो मंडे टू फ्राइडे में हमारा कितना डेफिसिट क्रिएट हो गया बताइए आप? 2-2 घंटे 10 का आवर्स का, एवरेज 10 आवर्स का होगा। क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आप सैटरडे या संडे में से, एक तो कहते हैं कि हम लोग पूरी अपनी नींद रिकवर कर लेंगे, बट इवन सैटरडे को भी ज्यादा लेट ही हो जाते हैं, राइट? सो अब क्या होता है, अगर आपने थोड़ी बहुत रिकवर करी भी तो लेट से कि आपने 4 घंटे की रिकवर करी, एक तो पूरी रिकवर नहीं हो सकती, सो इट्स नॉट लाइक 1:1। 4 घंटे की आपने रिकवर कर, तो कितना डेफिसिट रह गया? 6 आवर्स का। 6 घंटे का। अब अगले हफ्ते में आप पहुंच गए, अब अगले हफ्ते में सिर्फ सेम पैटर्न रिपीट हुआ, तो मेरा 6 घंटे के ऊपर 6 घंटे ऐड हो गया। Correct. फिर अगले हफ्ते में वापस 6 घंटे ऐड हो गया, तो मेरा एक साल में कितना ऐड हो गया? 52 वीक्स, हर बार के 6 घंटे, सो मेरा 350 घंटे, 350 घंटे ऐड हो गया। सो ये जो होता है ना कि हम लोग वीकेंड पे रिकवर कर लेंगे, इट डजंट वर्क। नॉर्मली वीकेंड पे रिकवर हो भी नहीं पाता है, रीजन बीइंग कि जब आप पूरा हफ्ता काम करते हो तो आप काम इतने पेंडिंग हो जाते हैं घर के, तो 2 दिन आपके वो कामों में निकल जाते हैं, प्लस फ्रेंड्स वगैरह से मिलना वगैरह रहता है। तो आई थिंक वीकेंड में तो और भी कम सोते हैं लोग। Correct, correct. So if that happens, so you are running on a deficit. Now you may ask कि प्रॉब्लम क्या है, राइट? ओके, है तो है 300 घंटे के, मैं मे बी एक साल में 300 घंटे है, मैं तो पिछले 5 साल से ये कर रहा हूँ, 1500 घंटे के डेफिसिट पे हूँ, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो यू कैन आस्क यही दैट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हाउ डज दिस इम्पैक्ट माय ओवरऑल हेल्थ, मे बी जैसे मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है, तो हाउ डज दैट इम्पैक्ट दैट? करेक्ट, करेक्ट। सो इसमें कैसे होता है, लाइक अगर हम देखें कि आपका जो स्लीप डेफिसिट है, एंड इसमें आई वाज एक्चुअली रीडिंग अ बुक एंड लिसनिंग टू प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है स्लीप के सब्जेक्ट पे ही डेडिकेट करी हुई है। नाउ ही हैज मेंशन्ड दैट यू नो हिज होल लाइफ ही वांट टू जस्ट रिसर्च ऑन स्लीप बिकॉज इट इज सो अंडर रिसर्च सब्जेक्ट। नाउ अगर उनकी, और अगर मैं उनकी उसमें से आपको रिपीट करूं कि शॉर्ट टर्म में अगर हमारी स्लीप डेफिसिट होता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे शॉर्ट टर्म में अगर मेरा स्लीप डेफिसिट चल रहा है? वन, अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ, एक्सीडेंट इज वन ऑफ देम, वेरी इजी। एंड स्लीप जिनकी डिप्राइव्ड होती है उसमें ऐसा हो सकता है, बिकॉज यू वुड नॉट इवन रियलाइज, जैसे ही बॉडी जोन्ड आउट वे में जाती है, वो अपने डेफिसिट को एकदम रिकवर करने की कोशिश करती है। यस, आई फेल्ट दैट। So this is the number one. अगर आप बोलोगे शॉर्ट टर्म में क्या रिस्क है, so this is one of the risk, and of course it affects your performance the very next day. So आपकी जो brain health है, आपकी जो libido है, so all that will get affected in the short term. That is the short term impact. What is the medium term impact? Medium term impact is diabetes, pre-diabetes. Basically, your hormone starts going out of whack. So you're very deeply related to your sunlight and sleep. तो ये अगर हमारी स्लीप रेगुलेटेड नहीं है, आवर हॉर्मोन्स डू नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड, एंड वी विल हैव लाइक यू नो आपकी डायबिटीज में दिक्कत आएगी। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल्स जो है, आपकी उम्र 10 साल बढ़ चुकी है, सो एट द एज ऑफ 30 योर hormones estrogen level or testosterone level will be as if it is 40. At the age of 40 it will be like 55. So this is what happens in the medium term because of sleep deficit. And of course, then you have mental health issues, you have depression, increased risk of infections, given how important sleep is for our immune system. आप देखोगे, जब देखो खांसी, जब देखो जुकाम, जब देखो allergies. See, एयर में डस्ट सबके लिए है, एयर में पॉलन सबके लिए है,
if my immune system is not behaving properly, either it is underworking or it is overworking, that means I will have problem. So उसको regulate करने का काम sleep करता है. आप देखिए एलर्जीज कितनी ज्यादा हैं आज की डेट में 30 I think around 40%, last time we discussed, around 40% people have allergies of different types. Now if that happens and you are not sleeping, so that is one of the direct side effects of sleep deficit in the medium term. And long term में there are enough studies now, you can refer them, enough number of studies कि it is linked to all cause mortality, मतलब किसी भी कारण से death, early death. So that is how important sleep is. But इसमें ना sweet spot है, ये जो है आपका जो बेस्ट रिजल्ट आता है between 7 to 9 hours में बेस्ट रिजल्ट आए. जो लोग 9 घंटे से ऊपर सोते हैं उधर वो असर नहीं होता, फिर अगेन बीमारियां चालू हो जाती है. 7 से नीचे 9 से ऊपर दोनों साइड पे अप ट्रेंड है. एंड 7 to 9 इज लाइक द स्वीट स्पॉट विच हेल्प्स यू इन द लॉन्ग टर्म हेल्थ. मतलब when we talk about health, we are talking about mental health, physical health, pretty much everything. Like there is not even one body function which is not affected by sleep. That suffices to say how important it is. Just because it is free, कोई वैल्यू मतलब लोगों को लगता है कि इसको बाद में देख लेंगे, बट ये डेफिसिट जो है ये कवर नहीं होती. इट्स ओनली अ मिथ. यू आर मेकिंग चॉइसेस. आपको लग रहा है कि आज मैं ये कर लूं बाद में सो जाऊंगा, भाई बात तो बाद में आएगा ना. आज तो आज ही जो करना है आज करो, बाद का कुछ भरोसा नहीं. Okay. So जो आपने एक बात बताई कि 7 to 9 hours का एक स्वीट स्पॉट है, एंड यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सर्केडियन रिदम जो हमारी बॉडी में सेट होती है. तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है दैट आई एम वर्किंग इन अ नाइट शिफ्ट, तो उसको मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज वो उस टाइम पे तो वो काम कर रहे होंगे जो हमारा मेन सोने का टाइम होगा. तो हाउ डू दे मैनेज दैट? अब सी, अब इसमें ओके, देर इज अ परफेक्ट आंसर एंड देन देर इज अ काम चला हुआ आंसर, राइट? सो फर्स्ट आई विल गिव यू कि जॉब छोड़ दो. लेकिन ठीक देखो, है, तो काम चलाओ वाला देना पड़ेगा आपको. तो इसके लिए काम चलाओ वाला देना पड़ेगा. सो परफेक्ट वाले में तो देखो क्या होता है, जैसे ही सन डाउन होता है ना, हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है मेलेटोनिन. ना ये हार्मोन का काम है हमें नींद के जोन में लेके जाना शुरू कर देगा. जैसे रात को होता है ना, आपको नशा आना चालू हो जाएगा, और वो ये हार्मोन का काम ही है. उसका काम अब क्या है, आप बोलो कि वो नशे की हालत में मैं काम करना चाहता हूँ, कर लो थोड़े दिन के लिए, ठीक है. कभी इमरजेंसी है आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन चल रही है, किसी का नया नया आई थिंक आपका वीडियो बीच में करना है, या मुझे कभी आपका वीडियो बीच में ब्रेक हो गया था. एक बार आपको ये वाला प्लीज पार्ट रिपीट करना पड़ेगा. श्योर श्योर. सो लाइक टेलिंग अस कि किसी का न्यू, हाँ, किसी का न्यू बेबी हुआ है, या देयर इज लाइक समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड एज वेल कि मुझे हफ्ते में एक दिन ऐसा करना पड़ता है. सी, इफ योर जॉब इज लाइक दैट कि आपको कुछ समय के लिए ये करना पड़ता है, इट्स फाइन. बट देन आई गेट दिस स्ट्रेट कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल. मतलब मैं उसको नॉर्मल करने की कोशिश या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश ना करूं. व्हाट आई कैन डू इज कि एटलीस्ट जो बाकी दिन है उसमें कैसे मैं मैक्सिमाइज कर सकूं अपनी स्लीप को. सेकेंडली, सुबह जैसे जब मैं सोने के लिए जाती हूँ, कैन आई क्रिएट अ वेरी डार्क रूम इन विच मेरा मेलाटोनिन अगेन रिलीज सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो जाए. सो कैन आई डू ऑल दोज थिंग्स. या एंड जैसे मॉर्निंग में आप आए, यू जस्ट गेट इन टू अ डार्क रूम, उस टाइम सनलाइट नहीं आनी चाहिए फिर आपके पास, and you have to ensure कि you are sleeping in that room. You are not doing that for a very long time, and you are taking extra care of your diet. See, because क्या होगा, now you have to understand कि एक मेरा एक रिस्क फैक्टर ऑन हो गया है वेट गेन का, एक रिस्क फैक्टर ऑन हो गया है हार्मोनल हेल्थ इश्यूज का, एक रिस्क फैक्टर ऑन हो गया है डिप्रेशन का. लेकिन ये जरूरी नहीं है. सी, रिस्क फैक्टर ऑन होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो स्विच ऑन होगा. इट मीन्स कि मेरी बॉडी में एक स्विच लग गया है, वो जल जाएगा तो पंखा चलेगा. बट स्टिल आई डू हैव सम पावर्स कि मैं उस स्विच में राइट, एंड मे बी स्लीपिंग एटलीस्ट
मेकिंग श्योर कि मेरे को 7-8 घंटे की स्लीप में फिर भी बढ़िया से ले लूं. आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन 5 घंटे की 4 घंटे की नींद in a dark room. Then I eat well, I exercise well, I take care of the other pillars so well that the chances of me getting affected are less. And secondly, I do not do it forever and ever and ever. मतलब ये मुझे पता होना चाहिए कि इसको एक टेम्परेरी कभी कभी करने के लिए है ये. इसको रेगुलर कोशिश करी जाए कि अगर आप अभी कर रहे हैं, आपकी कुछ ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपको इस साल ऐसा करना ही होगा, बट एक चीज ये माइंड में रखिए कि इसकी कीमत आप दे रहे हो जो पैसे से बड़ी है. तो इसके लिए अगर सपोज करो इस ईयर आप करना भी चाहते हो, बट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एट सम स्टेज आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट. एट सम स्टेज बेसिकली मैं एक साल में 3 साल की एजिंग बढ़ा रही. आई डोंट वांट टू डू इट फॉर एवर. मे बी एक साल ऐसा था, मुझे कुछ इतना बड़ा मैंने लोन ले लिया, अब दिस इज द ओनली जॉब आई हैव, तो मे बी 1 साल 1.5 साल मैंने निकाला, बट आफ्टर दैट आई वांट टू कम टू अ नॉर्मल लाइफ जिसमें मॉर्निंग में काम करे एंड रात में. बट आई डू अंडरस्टैंड, सी डॉक्टर्स का होता है, उनको शिफ्ट में काम करना पड़ता है, तो वहां पर भी वहां भी साइकिल्स होती है. ऐसा नहीं है कि सबको हमेशा नाइट शिफ्ट करनी होती है. सो कभी कभी आप करते हैं, कभी कोई और करता है. तो आई मेक श्योर कि जब मैंने किया एटलीस्ट मैं अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल, जो लीन की भी बात करेंगे, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा को मिनिमाइज. करेक्ट. अच्छा, एक आपने बीच में बात की दैट व्हेन वी, मतलब आई नो दैट यू डोंट रिकमेंड एनी सप्लीमेंट, बट एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपने मेलाटोनिन कहा है, आजकल ये काफी नया पैशन बना हुआ है कि यस मेलाटोनिन सप्लीमेंट ले लो एंड यू कैन स्लीप बेटर. सो यस उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सिर्फ पिल्स तो आती हैं बहुत सारी, राइट? नाउ व्हाट आई एंड दिस इज माय टेक ऑन अदर टाइप ऑफ पिल्स एज वेल, कि बहुत जरूरत है टेम्परेरीली कभी कभी लेनी पड़े एक डॉक्टर की सलाह से तो ले लिया. बट सी बैसाखी बैसाखी होती, राइट? सो बैसाखी चाहे एलोपैथ की हो कि आयुर्वेद की हो कि किसी भी चीज की हो, द फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी कि क्या मैं अपने रेगुलर स्लीप, रेगुलर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर सनलाइट, रेगुलर नेचर वॉक और रेगुलर मेडिटेशन से क्या मैं अपनी कितनी चीजों को बेस्ट कर सकती हूँ. फिर भी कहीं फंस गई, फिर भी कहीं दिक्कत आ गई, तो देन कुछ समय के लिए एक लेनी पड़े एक बैसाखी, तो ठीक है, डॉक्टर की सलाह से वो ली जा सकती है. बट सी द वे स्लीपिंग पिल्स वर्क, वन, आपकी बॉडी जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस कर रही है, अब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट ना होके बाहर से मेलाटोनिन दे रहे हो, राइट? सो यू आर इन अ वे, सो यू आर सेइंग कि ठीक है तुम नहीं काम करते तो तुम मत करो, मैं बाहर. नाउ थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम. आपको ये पूछना चाहिए कि तुम काम क्यों नहीं करते? तुमको बनाया है भगवान ने काम करने के लिए, काम करते क्यों नहीं हो? So first thing, and we always at UBAP believe in root cause. Find out. मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है आपको 5 दिन से नींद नहीं आई है, 2-3 दिन सप्लीमेंट लेके आपको करना पड़े, पिल्स लेके करना पड़े, it's fine. But what I need to find out is what is the root cause? Why do I not get sleep? What is it that I am doing in my lifestyle जिसकी वजह से मेरी sleep affect हो रही है? And I should try at least उसकी तरफ मेरे को थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच स्टार्ट करनी चाहिए. एंड देन सेकंड थिंग विच हैपेंस इट, कि जो पिल्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, राइट, उसमें आपका ऐसा नहीं होता कि वो आपको डीप स्लीप में लेके जाते हैं, वो आपको एक सिडेशन की स्टेट में लेके जाते हैं. नाउ सिडेशन एंड स्लीप, दे आर टू वेरी डिफरेंट. द एनर्जी यू गेट पोस्ट स्लीप and the energy you get post sedation, they are again two very different things. So ऐसा आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा जो बोलेगा पिल खा के मैं बहुत चैन से मजे से सो रहा हूँ, मैं जिंदगी में बहुत खुश हूँ. हाँ, काम चल रहा है, बट एज वी डिस्कस इन वेरियस टॉक्स दैट वी डू, काम चलाना इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट? काम चल रहा है, चल रही है, मतलब फिर ना चल क्या जरूरत है? So basically, what we want to do is, you want to optimize it to such an extent that you live a very beautiful life. You enjoy it with creativity, with curiosity, with love, and with energy.
That is what the, at least that's what we understand right now, कि that may be closer to the purpose of life than living like a zombie, पिल खा के रोज सोना पड़ रहा है. मतलब कभी कभी fine, not every day, and it should not be used as a substitute for your natural melatonin. राइट. एंड कभी कभी क्या होता है व्हेन यू टेक सप्लीमेंट्स देन, जैसे आपने बताया कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, देन यू स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम द सप्लीमेंटेशन. बट सम आफ्टर सम टाइम होता क्या है कि फिर आपकी बॉडी को लगता है कि मुझे प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, देन इट स्टॉप हाँ. प्रोड्यूसिंग इट टोटली. तो फिर आप टोटली लाइफ टाइम उसी उस पर डिपेंडेंट रह जाते और देखो वो जो सप्लीमेंट्स हैं किसी के लिए वर्क करते हैं, किसी के लिए नहीं करते. अगर कोई इतने बढ़िया बढ़िया सप्लीमेंट होते ना, तो फार्मा उनको पेटेंट करा के अपना बना चुकी होती. आपको हर अमेजोन पे अभी आप जाके स्लीप सप्लीमेंट डालो, कम से कम 500 कंपनियां हैं, राइट. अगर इतना ये बढ़िया होता तो आपको लगता है बिग फार्मा ने उसको छोड़ दिया होता? वो पहले बना ले, कंपनी को खरीदता, बोलता मेरा. सो इट्स नॉट दैट सिंपल. सी, जो चीज आपको, इसके लिए आपको नेचर के साथ सिंक में आना पड़ेगा और ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मेरा जो मेलेटोनिन है किस कारण से रिलीज नहीं हो रहा, एंड उसको ट्राई करेंगे. कम से कम उसको 15-20 दिन ट्राई करो. मैं तो ये बोलूंगी. तो आज हम जिस स्लीप रूटीन की बात करेंगे, 15-20 दिन ट्राई करो, देन देखो ना क्या होता है. फिर उसके बाद आप ट्राई, उसके बाद मे बी आपकी पिल, जैसे कितने लोगों के मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकती हूँ. आई हैव पीपल जो कि नींद की गोलियां लेते थे, 4-4 गोलियां लेते थे, एंड विद इन 1 month ऑफ चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल विद यूएप, लाइक विद योगा क्लासेस, प्राणायाम्स एंड डाइट एज वेल, उनकी अभी वो 4 गोली से 1 गोली पे आ चुकी. हैं. एंड दे वर लाइक कि ये कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन, क्योंकि वो कई सालों से गोलियों पे थे. रूट कॉज पे वर्क करना बहुत जरूरी है. और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है. मतलब ले लो सप्लीमेंट जब तक लेने हैं, 1-2 साल के बाद ट्राई कर लेना रूट कॉज. परमानेंट अप्रोच तो आपको देखना पड़ेगा ना कि हुआ कहाँ से, शुरू कहाँ से. एंड फॉर दिस जो आपने छोटे छोटे स्टेप्स बताए हैं विच यू कैन टेक, वी हैव यूएप योगा फॉर बेटर स्लीप एंड प्राणायाम फॉर स्ट्रेस रिलीफ, जिनके वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सो दैट पीपल कैन गो एंड चेक आउट. फूड के बारे में बोला, वी हैव यूएप किचन, जहाँ पे वी कैन गेट टेस्टी रेसिपीज जो कि आपके लिए हेल्दी भी रहेंगी प्लस आपकी ओवरऑल जर्नी में हेल्प भी करेंगी. सो Absolutely. प्रियंका, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस दैट कि नॉर्मली क्या होता है, मैंने आई हैव सीन दैट मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग विद वेट लॉस, तो उसमें कैसे इफेक्ट करता है स्लीप डेप्रिवेशन? सो उसमें तो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद तो आपको अपनी स्लीप को, मतलब यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. सो स्लीप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेट लॉस. नाउ हाउ डज इट हैपन? सी, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी एपिटाइट को रेगुलेट करते हैं. मतलब मुझे कितना खाना खाना है और कितना खाना खाने के बाद मुझे रुक जाए. नाउ दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड लेक्टिन एंड ग्रेलिन. नाउ क्या होता है कि जो हमारा फुलनेस वाला हार्मोन है लेक्टिन, मतलब हमें बताता है कि अब हम फुल हो गए, इट गोज डाउन बाय 20% इफ यू अंडर स्लीप फॉर जस्ट 1 डे. जो मेरी भूख का हार्मोन है, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, वो वाला हार्मोन गोज अप बाय 30%. सेटिस्फैक्शन वाला गया नीचे 20, ये गया ऊपर 30. दिस इज नॉट ऑल, देयर इज मोर टू इट. नाउ व्हाट इज मोर? अब क्या है, मेरी टेम्पटेशन किस खाने को चूज करना है वो भी चेंज हो जाती है. इफ यू आर अंडर स्लेप्ट, you are much more likely to choose foods which are high sugar, high carbs, processed carbs versus foods like vegetables. So it's not like कि जैसे अगर मुझे 2000 कैलोरी लेनी है, पहली चीज तो ये होती है कि मेरी 2000 कैलोरी सीधा 2400 कैलोरीज बन गई. और दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जो मेरी कैलोरीज अच्छी चीजों से मैं भर सकती थी अगर मेरी भूख ठीक होती, अब मैं खराब चीजों की तरफ, मेरी अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है. एंड इस पे क्या हुआ था, एक स्टडी हुई थी वेयर लोगों को ना एमआरआई मशीन में रखा गया था, उनकी ब्रेन एक्टिविटी देखी गई थी अलग अलग फूड आइटम को दिखा के उनको, और उन्हें बोला था कि जिसको जो आपको अच्छा लगेगा ना अभी मिलेगा आप. एंड वहां पर जो अंडर स्लेप्ट लोग थे, दे वर मच मोर लाइकली टू चूज, सॉरी की आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर, यस. हाँ. सो जो अंडर स्लेप्ट लोग थे, दे वर मच मोर लाइकली टू चूज फूड्स जिसमें बर्गर है,
पिज्जा है, फ्राइज है, देन एंड इसमें ये नहीं है कि उन लोगों को पता नहीं है ये बुरा है. आई जस्ट इट्स नॉट इन माई कंट्रोल. वी आर अ मशीन जो कि हमारे हार्मोन से चलती है. अब आपने पूरा उसको प्री डिस्पोज कर दिया है गड़बड़ खाने के लिए. अब सूप देख के यू नो रियली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सूप. वेयर एज इफ यू आर वेल स्लेप्ट, आप अपने आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, उसमें आपको सूप्स लेने हैं, सैलड्स लेने हैं, जो भी अच्छी चीजें आप सुन रहे हो. आज की डेट में किसको नहीं पता कि अच्छा खाना क्या हो? एवरीबडी नोज. फिर भी आप देखो ना कितनी बड़ी बड़ी बर्गर के आगे लाइन होती है. लेकिन आप ये भी देखो कितने सारे लोग हैं जो कि अंडर स्लीप करते हैं. आप कितने लोगों से मिले हो जो हु आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट कि मुझे इस टाइम सोना है रोज और मुझे इस टाइम जागना है. पार्टी, कभी पार्टी आ जाती है, कभी ऑफिस पार्टी आ जाती है, कभी घर की पार्टी आ जाती है, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ भी कारण से कोई बीमार हो गया, बात अलग है. बट फॉर एवरी स्मॉल थिंग अगर हम अपनी स्लीप को बैक बर्नर पे डालते हैं, फिर सुनते रहो कितना बुरा है बर्गर, रोक के दिखाना, रुकोगे नहीं. ये डिफरेंस आ जाता है. सो ये मतलब आपको अंदर से प्री डिस्पोज कर देती है इन अ वेरी हाईली हाईली इफेक्टिव वे कि वेट गेन हो गई. एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, आई नो यू गो टू जिम. नाउ अब क्या होता है, मेरी स्लीप अगर कम हुई है और अब मैं डाइटिंग करती हूँ, मैं खाना कम खाऊंगी, कैलोरी कम खाऊंगी, तो मेरा क्या उड़ेगा? फैट नहीं उड़ेगा, मसल उड़ेगा. So if you are in a sleep deprived state and you do dieting of any type, आप अपना जो बेस्ट रिसोर्स है, बेस्ट एंटी एजिंग रिसोर्स है, आपका बेस्ट रिसोर्स अगेंस्ट हेल्थ ऑफ ऑल टाइप्स विच इज योर स्केलेटल मसल, उसको उड़ाते हो. वो बनाना आपको पता है बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. जिम में कर करके खाना खा खा के आप परेशान हो जाओगे. आसान नहीं है मसल बनाना, राइट? कितने सप्लीमेंट खा रहे हैं आप, नींद पूरी नहीं कर रहे हो ना, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा. आप करो डाइटिंग, फिर उसके मसल खाएगी बॉडी आराम से. आई थिंक स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर आप टाइम से सो जाओ, तो अगर आप सपोज 9-10 बजे आप सो गए, तो ये क्रेविंग जो आप बर्गर पिज्जा जैसे आपने बताया उसकी वैसी खत्म हो जाती है. मैंने तो आई हैव नेवर सीन समवन की सुबह उठ के बोले मुझे पिज्जा खाना है. तो अगर ऐसा होगा तो वो तो डिफरेंट ही केस है, बट नॉर्मली सारी क्रेविंग्स रात को ही होती है. करेक्ट. सो ये होता ही है कि, और ये पूरा मतलब दिस इज साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड कि जब हम लोग अंडर स्लेप्ट होते हैं, हमारा इम्पल्स कंट्रोल, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, वो डाउन हो जाता है बहुत ज्यादा. और जो हमारी वो होती है ना हीडोनिस्टिक डिजायर्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर आयुर्वेद की उसमें बोले राक्षसी चाहते वो बढ़ने लग जाती है. सो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट स्लीप इज. एंड वी रियली देयर इज नो कॉम्पिटिशन. मतलब ये चीज अगर आपने गड़बड़ करी है और जो करना है करते रहो, ये अकेला बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, अकेला. सो अगर आपको कोई चीज देखनी, इवन मेंटल हेल्थ के लिए भी, डिप्रेशन में भी, सब चीजों में, अगर आपने 8 घंटे की नींद दे दी, आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा रात को आप किसी चीज के लिए यू आर वेरी अपसेट, you do not know what to do, and you know that problem is looking so big at night. After 8 hours of sleep, इतनी बुरी नहीं लग रही, I can handle it. So because होता क्या है कि हमारे ब्रेन में, सी हमारी बॉडी का तो पूरी बॉडी जैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में गड़बड़ चीजों को ड्रेन करता रहता है. जो हमारे ब्रेन में दिन भर का काम करके, दिन भर के इंटरेक्शंस करके जितने क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा जो कूड़ा प्रोड्यूस होता है, मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं दिन भर के, वो रात को क्लीनिंग उनका काम होता है नींद में, डीप स्लीप में. नाउ इफ यू आर नॉट डूइंग डीप स्लीप, यू कैन अंडरस्टैंड कि विद अ अनक्लीन ब्रेन इवन वन नाइट ऑफ मिस स्लीप कैन रियली बी बैड. करेक्ट, राइट. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हाउ डज दिस स्लीप इफेक्ट हार्मोन्स? जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, तो हार्मोन्स पे क्या इफेक्ट होता है, पर्टिकुलरली कौन से हार्मोन्स और सिस्टम बॉडी में होते हैं व्हिच गेट अफेक्टेड? So we spoke about the food related hormones, we spoke about leptin, ghrelin, how it affects, कि किस तरह से वो आपकी भूख बढ़ा देते हैं और जो सेटिस्फैक्शन क्वोशिएंट है वो कम कर देते हैं.
When it comes to sex hormones, your estrogen, progesterone, people who are suffering from PCOD and various type of issues around that, it increases your age by 10 to 15 years. I don't think anybody wants to be in that category. Correct. So this is very plain, simple effect of less sleep on your hormones, on your weight loss. So whatever you want to do, and then your feel-good hormones, your serotonin, your dopamine, सब cycles में sleep is at the base. If you आपको लगता होगा सुबह उठ के आपको थोड़ा अच्छा लगता है, रात की जो भी थकान है वो सुबह तक निकल चुकी होती है. Something does happen in the sleep which is magical, and that is why sleep is at the core of evolution. हर जानवर, हर जो जिसको भी हम देखते हैं, सबको नींद आती है. अदरवाइज नेचर, आप एक नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर हम जंगल में रह रहे हैं, आप जब सो रहे हो, यू बिकम सो ससेप्टेबल टू कि कोई जानवर आके खा सकता है. यू बिकम सो इंक्रीजिंगली प्रोन टू किसी भी तरह की गड़बड़ हो सकती है आपके साथ, फिर भी नींद कराता है, मतलब बहुत जरूरी होगी. ठीक है, अब हमने आधे घंटे से हम बात कर रहे हैं इस बारे में दैट हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज. सो अब अगला क्वेश्चन यही होगा कि नहीं, आई कैन हियर यू. यस, वीडियो इज क्लियर. सो कैन यू जस्ट वॉक अस थ्रू ए स्लीप रूटीन जो कि हमारे व्यूअर्स आज से ही स्टार्ट कर सकें, बिकॉज अब हमने बातें सुन ली कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इफेक्ट होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि अब हम करें क्या. करेक्ट. सो इसमें देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू स्टार्टिंग टुडे, एंड आई थिंक जो भी कर सकता है उसको जरूर ट्राई करें. मैं ये नहीं कह रही कि and I don't want to tell you how good they are. Just do it for 20 days and then you tell whether it worked or it did not work. Number 1, एक तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोज सोने सेम टाइम के अराउंड जाए. थोड़ा आधा पौना घंटा इधर उधर हो वो ठीक है, बट फर्स्ट थिंग इज ट्राई स्लीपिंग अराउंड द सेम टाइम एवरी डे और गेटिंग अप एट सेम टाइम, बिकॉज हमारे बहुत सारे हार्मोनल फंक्शंस होते हैं जो कि एक टाइम से लिंक हो जाते हैं. सो आप ज्यादा इधर उधर मत कीजिए कि किसी दिन 9 बजे, किसी दिन 12 बजे. इससे अच्छा आप एक 10 बजे का एंड आधे घंटे की वेरिएशन के अंदर आप कोशिश करिए कि बेड पे तो आप चले जाए. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, डार्कनेस. और वो आपको क्या करना है, शाम से शुरू करना. जैसे ही सन डाउन हुआ, आपको अपनी लाइट्स जो हैं थोड़ी थोड़ी कम करनी शुरू करनी. डू नॉट बी इन व्हाइट लाइट फॉर रात को 10 बजे. देयर इज नो सन आउट. सो उसमें हमें क्या करना है, जैसे ही सन चला गया लाइट्स को थोड़ा थोड़ा डाउन करते जाना है. येलो लाइट पे आ गए और डिम लाइट आ गई 9 बजे, लाइक दैट. सो आप देखेंगे जैसे ही वो लाइट्स डाउन होती है ना, आपके मेलाटोनिन की जो नेचुरल मेलाटोनिन है उसकी सिक्रीशन चालू होता है. Now that itself is a very beautiful thing. Why do I need melatonin from outside if my own organs can produce it, right? Correct. That is the second thing. The third thing is ज़्यादा परेशान मत हो अगर नींद नहीं आ रही. So this is for people who are already suffering from insomnia, कि उनकी one of the main reason जो प्रॉब्लम हो जाती है उधर, वो ये हो जाती है कि उनको पता चल चुका है कि मुझे नींद नहीं आ रही. That becomes a big problem. So उसके लिए क्या है, स्पेशली इफ यू हैव करंटली यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इंसोम्निया, तो आप क्या करोगे, लेटोगे. अगर लेट्स से कि नींद नहीं आई है 20-25 मिनट 30 मिनट तक, तो उसके बाद आप एक मेडिटेशन का ट्रैक सुन लो, या स्लीप स्टोरीज फॉर एडल्ट्स होती हैं वो सुन सकते हो. वी हैव वेरी गुड म्यूजिक एट यूवैप म्यूजिक फॉर द सोल, एंड वहां पर जो 50 मिनट्स का ट्रैक है, आई कैन टेल यू, आप वो सुनो. 1-2 दिन नहीं भी आई तो बात अलग है, बट कुछ दिनों में आप देखोगे वो ट्रैक चलता रहेगा, आपको नींद पहले आ चुकी है. करेक्ट. सो आपको परेशान नहीं होना कि नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही. वो 10 के हम वो 100 से उल्टी गिनती चुनना चालू करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, दे डोंट वर्क. तो आपको एक तो है कि अगर नहीं आ रही तो उठ के आप थोड़ी वॉकिंग वगैरह कर लो, लाइट्स मत जलाना. उठ के थोड़ी वॉकिंग वगैरह आपने कर ली, घर में करनी है, नीचे वॉक करके आ गए थोड़ा. कई बार हम टायर्ड नहीं होते बिल्कुल, दिन में हमने कुछ खास काम नहीं किया तो भी नींद कम आती. थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लिया, थोड़ा थक गए तो नींद आ जाएगी. नहीं तो उसके बाद आपने मेडिटेशन कर लिया, बेस्ट. आप वो करो. मोस्टली कुछ दिनों में आप देखोगे कि वो सॉन्ग चलता रहेगा और आपको नींद पहले आ जाएगी. And we will put that in description जो भी हमारे meditation के music हैं. Even we have Rag Ahir Bhairav which is for stress relief.
तो वो भी हाँ आप यूज कर सकते हैं, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसके अंदर। राग दरबारी is very good. So Great. one more thing which people can do is, and this is for everyone, not just for people who are suffering from insomnia, कि सोने से 10 मिनट पहले अगर आप साइलेंस में बैठे या आप किसी भी तरह का म्यूजिक बेस्ड मेडिटेशन करते हैं, कोई चैंटिंग करते हैं, इवन अनुलोम विलोम करते हैं, समथिंग टू काम यू डाउन, something which activates your calm wala system, which is your parasympathetic nervous system. So if you do that, that would be great. So that was tip number 4. And then number 5 is आपको जो sedatives हैं, like caffeine, like alcohol. So caffeine अगर आपको लेना है तो 12 बजे से पहले लो दिन में, not after 12 o'clock. In some people जो caffeine का वॉश आउट टाइम होता है सिस्टम से, हाफ लाइफ वो 8-8 घंटे की होती है, तो मतलब रात को 12 बजे भी मेरा चल रहा है. सो 12 के बाद मुझे कॉफी नहीं लेनी, और अगर कॉफी लेनी है तो डीकैफ वर्जन देना. ओके. एंड अल्कोहल जो होती है, हमें लगता है कि नींद कराती है, बट वो सिडेशन देती है पिल की तरह. कभी भी आप किसी अल्कोहलिक से पूछो या जिसने भी अल्कोहल पी के जो सोया हो, क्या उसको डीप स्लीप आई? सुबह मजा आता है उठने के बाद, हैंगओवर. सो अल्कोहल जो है, सो जब भी आप पी रहे हो, अल्कोहल विल डिस्टर्ब स्लीप. देयर इज नो लाइक देयर इज नो गुड टाइप ऑफ अल्कोहल व्हिच विल नॉट डिस्टर्ब योर स्लीप. जस्ट दैट जिस दिन आप पार्टी में गए हो, यू आर हैविंग अ ग्लास, जस्ट रिमेंबर आज की नींद अच्छी नहीं थी, बस थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी. That's it. And that works. So that is the cost you pay, not right. What you sign on the bill. Right. And I was saying कि alcohol is same way, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक पिल का और एक असली आपके खुद के मेलाटोनिन का डिफरेंस होता है कि वो सेडेटिव, मतलब एक जैसे ड्रग की तरह काम करता है जिसमें आपकी नींद पूरी हो नहीं पाती है, और उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा. देयर इज नो डीप स्लीप इन अल्कोहल. तो आप देखते होंगे कि कभी भी अगर आप ज्यादा कुछ ड्रिंक करके सोए हैं, ड्रीम्स आएंगे ज्यादा एंड देन परेशानी ज्यादा, सुबह हैंगओवर होगा. जब आपको रेस्टेड फील नहीं हुआ, मतलब नींद नहीं आई थी ना, कुछ और आया. सो इट इज नॉट इक्वल टू नींद. इट डिड इंक्रीज योर एज, एंड देयर इज नो वे यू कैन हैव अल्कोहल एंड हैव अ वेरी गुड स्लीप. आपको कुछ ना कुछ स्लीप में डिस्टर्बेंस जरूर आती है, चाहे किसी भी ब्रांड की ले लो, कितनी भी हाई क्वालिटी लो क्वालिटी ले लो. अल्कोहल का पर्पस है वो आपके स्लीप के अंदर डिस्टर्ब करती है. डीप स्लीप में आपको फील होगी नींद आती, लेकिन वो वाली नींद नहीं आई जो बिना अल्कोहल के आई. सो ठीक है, जिस दिन लेना है ले लो. आई एम नॉट सेइंग कि पार्टी में लेना होता है, बट ले लो. राइट. ठीक है, चलो. एंड या प्लीज, उसमें कोई पॉइंट लेफ्ट है आफ्टर दिस? द लास्ट वन इज ब्लू लाइट. सोने से 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा पहले फोन को बंद करना पड़ेगा. प्रेफरेबली दूसरे कमरे में रख दो, बेस्ट. वो जो किंडल वाला जो होता है, जो आईपैड पे दूसरा वर्जन, ये वर्जन, ब्लू लाइट ऑफ करके वर्जन कर लो, इट्स बेटर, बट देयर इज नथिंग दैट कंपेयर्स टू अ रियल बुक. आई थिंक आपकी वीडियो स्टक है. आपका नींद, सॉरी, हाँ. सो नींद का अगर हम, वीडियो स्टक हो रहा था आपका. श्योर. सो द फिफ्थ वन वाज कि हमें अपना जो फोन है, सोने से 1 घंटा पहले उसको बंद करना होगा और सेम कमरे से बाहर रखना. करेक्ट. सी इट्स द प्राइस फॉर अ गुड नाइट स्लीप, राइट? यू मे से कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सी इट डजंट हैपन. सो थोड़े दिन बाद आपके दोस्तों को, आपके घर वालों, सबको पता चल जाएगा इस टाइम के बाद ये लोग अवेलेबल नहीं होते. सिंपल. ऐसा तो नहीं आपका कोई भी काम रुक जाएगा, अगले दिन सुबह हो जाएगा. नहीं तो वो लोग आपको पहले 9 बजे से पहले फोन करके बता दें कुछ इंपॉर्टेंट होगा. उनको पता है 9 के बाद ये नहीं होता. हर टाइम थोड़ा ना अवेलेबल है. वो हमने बात किया था ना पिछली बार, स्लेवरी और मास्टर की. वी कांट बी अवेलेबल ऑल द टाइम, राइट? Right. So Priyanka, we have 10 minutes. What we can do is we can just take on question from comment section. Sure. And let me see. One question is deep sleep कैसे करें? मतलब इस पे तो I think हम एक अलग से टॉपिक पे ही बात करेंगे कि deep sleep, REM sleep and light sleep क्या होती है. But अभी question is that deep sleep कैसे करें? तो ये आपको जो प्रोटोकॉल दिया है, जो 5 पॉइंट्स दिए हैं,
You try it for 20 days and then tell me whether you are starting to getting like अभी जो आपकी sleep condition है वो कितनी ज्यादा better हो गई है. So this is the same 5-point protocol which is आप रोज बेड पे सेम टाइम पे या सेम टाइम के अराउंड जाएंगे 30 minutes here and there. Second is darkness. शाम को 7 बजे के बाद darkness start हो जाएगी. Third is अगर नींद नहीं आ रही तो उठ के मेडिटेशन कर लेंगे या वॉक कर लेंगे. उसमें तड़पते नहीं रहेंगे, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही. That is going to work like that will work against bringing, क्योंकि this is something like love. The harder you try, the more difficult it becomes. You can't try for it. You just get it. तो थोड़ा सा इसमें ना वो टू डू से वो टू बी वाली स्टेट में आना पड़ता है कि रिलैक्स, आएगी, कहाँ जाएगी, आएगी. तो आपको बस वो करते रहो, आएगी नींद जरूर. वो आपको एक जैसे होता है ना, थोड़ा दिल रखना पड़ेगा. देन फोन, एंड वी स्पोक अबाउट कैफीन एंड अल्कोहल. सो ये आपको इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो 20 दिन तक कंटिन्यूअसली करो एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. राइट. तो एक आपने जैसे बीच में डेफिसिट की बात की थी, देन देयर इज वन क्वेश्चन दैट I have literally years of deficit. Now that I am in a position to give time to recover, what should be my course of action? So this 5-point routine आपको आज से करना है एंड कोशिश करनी है between 7 to 9 hours of sleep. Sleep का मतलब मेरी बॉडी को कितनी चाहिए, जहां मुझे बिना अलार्म के मैं उठ सकती हूँ, मुझे उतनी चाहिए. अलार्म से उठना पड़ रहा है तो वो क्या होता है, हम कई बार रॉन्ग टाइम पे उठ जाते हैं, हमारी स्लीप साइकिल्स में चलती है. सो अलार्म बीच में गलत टाइम पे कर देगा तो यू विल फाइंड कि यू नो आई एम वेरी ग्रम्पी. सो बिना अलार्म के मैं किस टाइम उठती हूँ, दैट इज द अमाउंट ऑफ स्लीप माई बॉडी नीड्स. इट कुड बी बिटवीन 7 to 9. इफ यू आर रनिंग डेफिसिट हो सकता है कुछ समय तक आपको 10 भी होगा, बट धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो जाएगा. एंड इट कैन चेंज फ्रॉम अ डे टू डे बेसिस. लेट्स से यू वर्क वेरी हार्ड इन द जिम, तो अभी अगर आप जिम में बहुत हार्ड वर्क किया तो हो सकता है 9.5 घंटे भी आ सकती है आज. So next question is that hormones के लिए ये how to avoid premenstrual back pain one week before periods, any natural remedies? So उसमें जो नेचुरल रेमेडीज है, आई थिंक अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी पे अटैच्ड हैं, सो वहां पर अभी हम जुलाई में 5-point चैलेंज कर रहे हैं. सो नाउ हमारी जो थिंकिंग है अबाउट दिस एंटायर थिंग, इट्स नॉट वन डिजीज बेस्ड, इट इज यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ. एंड व्हेन आई एम वर्किंग सो डिजीज बोलते हैं उनकी नींद अच्छी हो गई, कुछ लोग बोलेंगे बाल झड़ना कम हो गए, कुछ लोग बोलेंगे स्किन बड़ी अच्छी हो गई है, कुछ लोग बोलेंगे मूड बड़ा अच्छा हो गया है. तो आपके लिए फर्स्ट सजेशन यही रहेगी, यू स्टार्ट विद दैट 5-point थिंग जो कि ग्रुप्स पे चल रही है, एंड यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दैट ऑन द ग्रुप इटसेल्फ. Okay, so same question, एक क्वेश्चन भी था that about session details. So what we will do is हम ग्रुप की जो हमारी कम्युनिटी है, we will send that link in comment section so that you can just join the community and ये सारी information आपको जो प्रियंका ने बताई वो वहाँ पे आपको मिल सकती है. And so again there was a question was that is there any other WhatsApp group for hormonal balance? So we will share all the details. And I can see a question on very interesting question by Sadasiba on dreams. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. जो जैसे जो ड्रीम्स का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि नाइट में ड्रीम्स आते हैं देन अर्ली मॉर्निंग में आते हैं. एक्चुअली ड्रीम्स तो सबको आते हैं, किसी को याद रहते हैं, किसी को नहीं रहते. एज यू स्टार्ट डूइंग मोर एंड मोर मेडिटेशन आपको याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे, आते सबको. एंड ड्रीम्स जो है दे सर्व अ वेरी ब्यूटिफुल पर्पस. मैंने पूरे दिन में लेट से बहुत पढ़ाई करी है, बहुत सारी मैं चीजें सीख के आई हूँ, बहुत लोगों से मिल के आई हूँ. ड्रीम क्या करता है, वो पूरी इंफॉर्मेशन में से जो काम की चीज होती है ना उसकी पिक्चर बना देता है. ड्रीम एक तरह से हमारी इंफॉर्मेशन सेविंग के लिए एक मेथड है विच इज मेड बाय नेचर इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. एंड द सेकंड पर्पस विच ड्रीम्स डू इज यू कैन से दे आर ऑल्सो प्यूक ऑफ द माइंड. मतलब मैंने जो एक्स्ट्रा इमोशन ले लिया वो इमोशन को रिलीज कर देता है, खाली इंफॉर्मेशन रख लेता है. So in any experience that I have, there is emotion and then there is reality. वो इमोशन को प्यूक कर देता है, फियर एक्स्ट्रा लगाता है, फियर निकाल दो, और रियलिटी को अपने पास रख लेता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि फ्यूचर में उससे सीख मिलेगी.
So dreams are a very beautiful thing and we should not try कि ना आए ड्रीम, आया तो आया, अच्छी बात. एक क्वेश्चन है, विल, जैसे नॉर्मली हमें होता है कि रात को दूध पी के सोना है, तो विल मिल्क हेल्प इन टू गेट डीप स्लीप? भाई देखो मैंने पहले भी बोला था, आई डोंट लाइक बैसाखी ऑफ एनी टाइप. करेक्ट. उसको लगता है सोने से पहले डाउन होता है, उसको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? सो यू नो जिसको पीना है पिए, उसको अगर लगता है उससे फायदा होता है तो ले, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. लेकिन योर बॉडी एंड योर सिस्टम शुड बी वेल फंक्शनिंग कि आई कैन, किसी दिन मिलेगा दूध, किसी दिन नहीं मिलेगा, किसी दिन मिलेगा सैलड, किसी दिन नहीं मिलेगा, किसी दिन आपकी चाय मिलेगी, किसी दिन नहीं मिलेगी, कॉफी कभी मिलेगी नहीं मिलेगी. आई कांट बी सो डिपेंडेंट. जो मिला थैंक यू, ले लो. नींद का कोई कोरिलेशन नहीं है. करेक्ट. वन इज दैट ड्यूरिंग स्लीपिंग फीलिंग लाइक ऑलवेज अलर्ट, मतलब बड़ी लाइट स्लीप है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब नींद तो आ जाती है बट आज जो रूटीन दिया है, डू इट फॉर 20 days and then share your experience in YouApto. Okay, so we will take just last question. There is one question that please tell me some tips to regulate periods. Sorry, I missed the question. So please tell me some tips to regulate periods. So see again, उसके लिए I would suggest कि you watch our session on PCOD and perimenopause, क्योंकि उसमें हमने बहुत बात की है in detail जो कि फीमेल हार्मोनल हेल्थ पे कैसे होती है. I cannot answer it in 1 minute. See जो हमारी ये irregular periods होते हैं, ये हमारे सालों साल के कर्मों का प्रसाद होते हैं. So I cannot just say like give you one pill, and we don't want to encourage that. We don't have one pill जो कि सब कुछ ठीक कर देगी. भाई ये शतावरी चूर्ण खा लो and you know हम कोई बाबा जी नहीं है. You have to have a, so if you start living in sync with nature, आपका खाना, आपका सोचना, आपका सोना, आपका जागना जैसे जैसे नेचर के साथ सिंक में आएगा, आपकी बॉडी ऑलरेडी बढ़िया है, वो अपने आप सिंक में आएगी. आप उसको ट्राई तो करो. Right. So thank you so much for your views, Priyanka. So is there any final tip you want to give our viewers? Final advice. So I think final advice would be that you know sleep is, we should not for anything, at least if you can, try to compromise your sleep. कोशिश करो कभी एक आध दिन किसी भी कारण से डेफिसिट होता है, हम अगले दिन उसको रिकवर करें. कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करें. ड्रीम्स होते हैं, पैसा कमाना है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट धीरे धीरे जब आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करोगे ना, यू विल फाइंड योर ब्रेन इज वर्किंग एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, योर बॉडी इज वर्किंग एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. आपको अभी उन सपोर्ट सिस्टम की पूरा दिन जरूरत नहीं पड़ती जो कि एक अंडर स्लेप्ट इंसान को पड़ती है. अंडर स्लेप्ट इंसान को लाइफ में वर्क करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है. उसको ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा कि काम करने में कितना मजा आता है. सो जब आपकी स्लीप नॉर्मल होगी ना, आपको ऐसे ऐसे चीजें समझ में आने लग जाएंगी जो कि अंडर स्लेप्ट इंसान के लिए बहुत मुश्किल होंगी. तो स्लीप को आप करके प्रायोरिटाइज करो. आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, नौकरी कहीं नहीं जाएगी, रिलेशनशिप्स कहीं नहीं जाएंगे. इफ एनीथिंग दे विल मेक इट मच बेटर. Right. So thank you so much, Priyanka. And guys, if you find our videos helpful, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, you can check out our other social media platforms. YouApp official पे प्राणायाम योगा की वीडियोस देख सकते हैं. We have YouApp Kitchen जहाँ पे आप फूड की रेसिपीज देख सकते हैं. We have YouApp Music for Soul जहाँ पे जो मेडिटेशन म्यूजिक के बारे में प्रियंका बात कर रही थी. You can try that. And plus अपनी कम्युनिटी के हम सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे so that you can join our community and we can grow together, healthy life एक साथ में जी सकते हैं. And do like this video, share with your friends. जिसको भी लगता है कि जो सोते नहीं है, प्लीज उनसे शेयर करो ताकि वो सोना स्टार्ट करें. दे शुड नो कि सोना कितना इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच प्रियंका. सॉरी, और ना सोना कितना खतरनाक है. राइट. यस, आई थिंक जो ना सोने वाला पॉइंट है वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि क्या क्या उससे इफेक्ट होते हैं. तो थैंक यू सो मच प्रियंका. सो एंड गाइस डू कमेंट कि आप किस बारे में चाहते हैं कि हम बात करें नेक्स्ट वीक. वी विल ट्राई टू टेक योर टॉपिक. एंड थैंक यू सो मच प्रियंका.
We will see you again Thank you. next Thursday at 5 p.m. Right. Yes. Bye Thank bye. you. Take care. Bye. Bye.